गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। प्रीवियस सीरीज के अंदर हमने 19 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं 20 to 30 क्वेश्चन। 10 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 क्वेश्चन का स्टेटमेंट। An element X is soft and can be cut with the help of a knife. It is very reactive to air and cannot be kept open in the air. So we know well it is a very easy question, and this is the property of sodium metal. Okay, so it reacts vigorously with the water. Identify the element. So the given statement are the properties of sodium metal, soft metal. So from the options, option number B is the correct answer. बिना देखे ही आप बता सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टी सोडियम मेटल की है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द ओनली नोन मेटल दैट इज लस्ट्रस इन द प्रॉपर्टी। सो वी ऑलरेडी नो ओनली नोन मेटल विच हैज लस्टर इज आयोडीन। So where is iodine? This one is the iodine. So correct answer is iodine. Lustrous property में होते बेटा इसके सॉरी 22, the metal that is liquid at room temperature. So what he ask, ये आपको metal पूछ रहा है, तो metal कौन होता है जो room temperature पे liquid है? Mercury. Okay, this is the mercury. Okay, see in the given option, mercury and bromine both are in liquid condition, but mercury are metal and bromine is non-metal. So correct answer is mercury. Next one is the 23, question number 23. Which of the following is an amphoteric oxide? Amphoteric means both properties. Amphoteric means amphoteric acid as well as acid plus basic. Both property are contained in same molecule. So this type of the example are very popular. Like first one is the alumina and second one is the zinc oxide. Both are the amphoteric nature. So correct answer is the D option. Okay. Next one is the which of the following known metal conduct electricity? What he asked, it is known metal. So only the known metal are graphite, which has conductivity properties and conduct electricity. So correct answer is the graphite. Next one, which of the following is and are not ionic compound? Okay, I already defined you the ionic compound. They separate out in the ions form. Okay, so and they has the ionic bond in them. From the given option, KCl has ionic bond, NaCl has ionic bond, but in the CCl4 that has the covalent bond. So the correct answer is C. That has not a ionic bond, it has the covalent bond. और आपको क्या पूछा है? Not a ionic bond वाला कंपाउंड पूछा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन आपको देखना है which of the following statement is incorrect for magnesium metal? मैग्नीशियम मेटल के इनकरेक्ट क्या रहेगा बेटा? तो देखिए पढ़ते वन बाय वन। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, इट इज द राइट स्टेटमेंट, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है। इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस, इट इज नॉट ए राइट स्टेटमेंट। ये आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता बेटा, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके यही बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस, दिस स्टेटमेंट आर आल्सो राइट। It float in the water due to formation of bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. Okay, ये भी आपका राइट स्टेटमेंट है। मीन्स जो भी हाइड्रोजन गैस बनती है वो आपके मैग्नीशियम मेटल के सरफेस के साथ स्टिक होती है, और ड्यू टू दिस स्टिकनेस मैग्नीशियम मेटल वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द स्टेटमेंट नंबर बी इज द इनकरेक्ट, सो इट इज द आंसर। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, दिस वन इज द आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Next one is the 27. The electronic configuration of three metal given is x, y and z are x आपको दे रखा है 2,8, y आपको दे रखा है 2,8,7 and z equals to 2,8,2 respectively. Which of the following statement is correct? Okay, तो ये आपको कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो मैं मेटल पता कर सकता हूँ 2,8 मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 10, और एटॉमिक नंबर 10 वाला जो एलिमेंट होता है नियॉन। y का है आपका 287 मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे बेटा 17, और 17 वाला एटॉमिक नंबर का जो एटम होता है वो रहता है आपका क्लोरीन। नेक्स्ट आपके पास है 282 मीन्स 2
8 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? 12। और जो 12 के लिए आपके पास रहता है वो रहता है आपके पास मैग्नीशियम। ओके, तो दिस वन इज द मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम, अब देखो अपने पास मेटल आ गए गिवन एटॉमिक नंबर से या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब हम चेक करते हैं एक्स इज द मेटल, एक्स हमारे पास फर्स्ट था। दिस वन इज द नियॉन एंड नियॉन इज द नोबल गैस, ये मेटल नहीं है तो दिस वन इज द इनकरेक्ट हो गया। वाई, वाई इज द मेटल, वाई कहाँ गया? दिस वन वाई, क्लोरीन आया है, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल तो ये तो मेटल नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। जेड, जेड इज ए नॉन मेटल, अब जेड को पकड़ो, जेड आपका लास्ट वाला है जो कि मैग्नीशियम एटम आ रहा है, मैग्नीशियम इज ए मेटल तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा? क्रॉस हो गया। डी ऑप्शन पढ़ो, वाई इज नॉन मेटल, वाई बीच वाला है आपके पास, वाई इज क्लोरीन है, नॉन मेटल है, यस इट इज करेक्ट। एंड जेड इज मेटल, जेड आपका लास्ट वाला है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम आपका क्या है बेटा? मेटल है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट स्टेटमेंट को शो कर रहा है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। दिस वन इज द 28। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव a coating of an insulating material, the material generally used in, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन। ये एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है हम इलेक्ट्रिक वायर की कोटिंग के लिए यूज करते हैं और वो है आपका पीवीसी। ओके, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इट इज इंसुलेटर। ओके, सो करेक्ट आंसर आपके पास आएगा पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 29। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट बर्न इन एयर बट फॉर्म्स ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन द सरफेस? ओके, तो डू नॉट बर्न इन एयर, इनमें से एयर के साथ कौन बर्न नहीं होता? तो मैग्नीशियम बर्न हो जाता है, सोडियम बर्न हो जाता है, तो ये आंसर आपके नहीं होंगे। कॉपर और सिल्वर दोनों बर्न नहीं होते एयर के साथ, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब सेकंड इसने बोला है कि ब्लैक कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो कॉपर के जो ऑक्साइड है वो आपके कैसे रहते हैं बेटा? ब्लैक कोटिंग में रहते हैं। ओके, और सिल्वर के सल्फाइड ब्लैक कोटिंग में रहता है, तो हमको तो ऑक्साइड पूछा है तो कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक कोटिंग। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिल्वर के सल्फाइड ब्लैक में रहते हैं, हमको ऑक्साइड पूछा है इसलिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा ए। द नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 30। जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, स्टेटमेंट आपके सही है। विच ऑफ द एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल? ओके, अगर आपका ये एक क्वेश्चन जो था सॉल्यूशन के समय में बताया था कि जो HNO3 में आपके पास जो हाइड्रोजन गैस बनती है, ओके, HNO3 में मेटल प्लस HNO3 अगर आप लेते हो तो आपके पास अगर जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं बनता? हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। तो इन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन the HNO3 does not give H2 gas, it give H2O। और अगर आप मैग्नीज और मैग्नीशियम का यूज करते हो तो आपको H2 गैस मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इसका है सी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अभी भी हमारे पास 1 मिनट बाकी है। द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया। ओके, कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया में क्या रहता है बेटा? एक रहता है आपके पास HCl, सेकंड रहता है आपके पास HNO3। तो HCl और HNO3 का प्रोपोर्शन कितना होता है? 3:1। ओके, कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं तो पहला कहाँ गया? कंसंट्रेटेड HCl को पकड़ो, कंसंट्रेटेड HCl इसमें और इसमें है, दोनों में 3:3 का प्रोपोर्शन है। और कंसंट्रेटेड HNO3, ये कंसंट्रेशन HNO3 है जो प्रोपोर्शन 1 है, तो करेक्ट जो आपका मैच है दिस वन इज द करेक्ट मैच। जो एक्वा रेजिया रहता है आपका, एक्वा रेजिया कंसंट्रेटेड एसिड दोनों ही पार्ट रहते हैं, एक रहता है HCl और सेकंड आपका HNO3, 3:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अभी भी हमारे पास टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड? ओके, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं है? तो फर्स्ट वन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यस आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सेकंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। ओके, देखो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होते हैं। ओके, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होते हैं। हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका राइट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, यस डी आपका करेक्ट है। अगर वो मोल्टन स्टेट में है तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इसमें से राइट कौन से नहीं? नॉट ए जनरली एग्जिबिटेड बाय एनी कंपाउंड मीन्स
बी ऑप्शन जो दे रखा है वो इस आयनिक कंपाउंड से शो नहीं करता है। ओके, तो 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 20 to 32 तक, अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।